Hello students, how are you? Hope you are very well. Today my topic is business environment, third unit of business study, and we discuss about the business environment in two parts. So first of all, business environment. It's very necessary. The study of business environment is compulsory for the survival and growth of the business. That's why we have to study very well the business environment. It means surroundings. It means आला दुआला. आपके बिजनेस के सराउंडिंग में क्या हो रहा है ये सब आपको थॉरली स्टडी करना होता है टू सर्वाइव एंड ग्रोथ इन द बिजनेस. So how to survive and growth in the business, to accept this, to get this, we are here to study about the business environment. So business environment, it means surroundings. First of all, we discuss about the contents. What is the syllabus of business environment in latest CBSE board? फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग कंसेप्ट में हमारे फीचर्स एंड मीनिंग आ जाते हैं एंड देन इंपॉर्टेंस. नेक्स्ट है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. देयर आर 5: इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल. देन डीमोनेटाइजेशन कंसेप्ट है, उसके फीचर्स हैं. ये आपको बहुत अच्छी तरह पता है बिकॉज इस जनरेशन में ही ये मिस्टर मोदी ने लॉन्च किया, चेंज किए थे करेंसीज को. एंड देन what is the impact of government policies changes on business with special reference to liberalization, privatization and globalization, जिसे LPG भी बोलते हैं. We are here to thorough study of this syllabus of business environment. First of all, we understand the meaning of business environment. What is business environment? Business environment means the sum total of all those factors which influences the business and over which the business has no control. It has both threats and opportunities for the business. The study of business environment enables the managers to identify threats and opportunities. It means business environment एक वो फैक्टर है जो बिजनेस के ऊपर जिसके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता. ये थ्रेट्स भी हो सकते हैं और अपॉर्चुनिटी भी हो जाते हैं. इन दोनों की स्टडी करते रहना मैनेजर्स को बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग क्लियर करता है. सो यहाँ पे एक बिजनेस इन्वायरमेंट में थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू वर्ड्स आए हैं. व्हाट आर दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रेट्स क्या होते हैं? It refers to the negative changes that occurred in the business environment and hindered the performance of an organization. जो एक परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशंस की होती है उसमें रुकावटें क्रिएट करते हैं वो होती हैं थ्रेट्स. Now what are the opportunities? It refers to the positive changes that occurred in the business environment and helped the organization to improve its performance. Opposite of threat, opportunities वो चीज होती है, वो पॉजिटिव चेंजेस होती हैं जिसमें आपको अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के चांसेस मिलते हैं. नाउ क्लियर बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल दोस फैक्टर्स एंड which influences the business and over which the business has no control. It may be threats and opportunities. And threats and opportunity का मीनिंग दे देना है, ये आपका मीनिंग क्लियर हो जाता है. अब हमने स्टडी करनी है फीचर्स, जिसको करेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, नेचर भी बोलते हैं. तो फीचर्स क्या हैं? देयर आर 7 फीचर्स इन बिजनेस एनवायरनमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर इज all the external forces. Business environment includes all the forces, institutions and factors which are externally to the business organization. बिजनेस के ऊपर बाहर की फोर्सेस का जितना इफेक्ट पड़ता है वो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है. सारी बाहर की फोर्सेस का, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो कोई भी फैक्टर है जो बाहर से इफेक्ट करता है, उसको बिजनेस इन्वायरमेंट बोलते हैं. 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर देयर. नंबर 1 स्पेसिफिक एंड नंबर 2 जनरल. नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक एंड व्हाट इज जनरल? Specific forces affect business enterprises directly and immediately in their day-to-day working. These include suppliers, investors, customers. General forces are customers.
तो स्पेसिफिक फोर्सेस वो होते हैं जो एक ही इंडस्ट्री को, एक ही ऑर्गेनाइजेशन को पर्सनली अफेक्ट करते हैं, उस चीज का दूसरी इंडस्ट्रीज के ऊपर, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पे असर नहीं पड़ता, तो स्पेसिफिक फोर्सेस। एंड जनरल फोर्सेस क्या होते हैं? जिनका सारी इंडस्ट्रीज पे, सारी ऑर्गेनाइजेशंस पे इकट्ठा अलग टाइप से अफेक्ट पड़ता है। जस्ट लाइक सोशल, political, legal, technological conditions have impact on all the enterprises and affect individual firms only indirectly. ठीक है, किसी को ज्यादा किसी को कम, बट सारी इंडस्ट्रीज को अफेक्ट पड़ता है, वो होती हैं जनरल फोर्सेस। नंबर 3, इंटर रिलेशन। All the forces and factors of business environment are interrelated to each other. You know very well. And for example, with inclination of youth towards Western culture, the demand of fast food is increasing. अगर आप वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हो तो ही डिमांड फास्ट फूड की बढ़ रही है, जिम की बढ़ रही है, या अगर आप किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्ट होते हो तो उसका इफेक्ट जिस पे पड़ता है वो होता है। अगर आज के कोविड-19 में योगा का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो लोग लौकी का जूस एंड योगा, मेडिटेशन, ये अपने आप को फिट रखने के लिए, एनर्जेटिक लेवल इंक्रीज करने के लिए बढ़ा रहे हैं। तो जिस चीज से आप जिस चीज को अडॉप्ट करते हो उसका डिमांड बढ़ जाता है, तो उससे रिलेटेड गुड्स का डिमांड बढ़ जाता है। सो उसको बोलते हैं इंटर रिलेशन, कि एक का इफेक्ट दूसरे पे पड़ता है। अनसर्टेनिटी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द चेंजेस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। कल क्या होना है कुछ नहीं कोई भी एग्जैक्टली कह सकता, इसलिए इसे अनसर्टन बोलते हैं। As environment is changing very fast, for example in IT, fashion industry, frequent and fast changes are taking place. तो ऑर्गेनाइजेशंस को, बिजनेस सेक्टर को उसी वे से अपने आप को चेंज करना पड़ता है, बट उतनी फास्टली इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट दे आर कोप अप विद द चेंजेस। डायनामिक, डायनामिक मीन्स चेंजेबल। बिजनेस इन्वायरमेंट इज हाईली फ्लेक्सिबल एंड कीप चेंजिंग। अगर फास्ट फूड की डिमांड बढ़ी है ना, तो यूथ वेस्टर्न कल्चर की ओर अगर अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने अपने बिजनेस में फास्ट फूड की चीजें ज्यादा रख ली। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, उसमें स्कोप होता है कि वो अकॉर्डिंग टू डिमांड अपने आप को, अपने बिजनेस को चेंज कर सकता है। बिजनेस की जो प्रोडक्ट वो बना रहा है बेसिकली तो वही रहती है, लेकिन उसके टेस्ट में, उसके इंग्रेडिएंट्स में अकॉर्डिंग टू डिमांड चेंज कर सकता है। इट इज नॉट स्टैटिक और रिजिड, दैट्स व्हाई इट इज एसेंशियल टू मॉनिटर एंड स्कैन द बिजनेस इन्वायरमेंट कंटिन्यूअसली। मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी मुश्किल है, बट फिर भी बिजनेस इन्वायरमेंट को कॉन्टिन्यूसली स्टडी करते रहना ही एक ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट होता है। कॉम्प्लेक्स मैंने वेरी डिफिकल्ट, बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कल क्या होना है। ऑल्दो इट इज इजी टू स्कैन द इन्वायरमेंट, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो हाउ दीज चेंजेस विल इन्फ्लुएंसेस बिजनेस डिसीजंस। पता है कल कुछ होना है, लेकिन उससे बिजनेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, थ्रेटन्स आएंगी, अपॉर्चुनिटी आएंगी, इसका कुछ हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते। सो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, इट मीन्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। रिलेटिविटी, बिजनेस इन्वायरमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। इंटर रिलेशन होता है गुड्स से रिलेटेड, कि एक चीज का इफेक्ट दूसरी पे पड़ गया। अब रिलेटिविटी क्या होता है कि अगर आप इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस करते हो तो उसका इफेक्ट उस पर भी पड़ता है। बिजनेस इन्वायरमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, एज पॉलिटिकल कंडीशंस, कल्चर्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। हर रीजन में, हर कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है बिजनेस का। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मोर डिमांड फॉर साड़ीज इन इंडिया एज कंपेयर टू यूएसए और यूके. Some same conditions in the environment may have different effect on different enterprises. For example, when consumer organizations found pesticides in cold drinks, it came as constraint for cold drink industries, but it was an opportunity for juice industry. अगर कोल्ड ड्रिंक में पेस्टिसाइड्स मिलने की गवर्नमेंट ने, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस ने
बताया था कि इसमें पेस्टिसाइड्स होते हैं, तो लोगों का ट्रेंड क्या हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स को चेंज करके उन्होंने जूस को प्रेफर करना शुरू कर दिया, जिससे अपॉर्चुनिटी किसको मिल गई, जूस इंडस्ट्रीज को। मे बी वही इंडस्ट्री कोल्ड ड्रिंक वाली जूस भी बनाने लगे, उसने कैसे इसको कॉप अप किया, उसने अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी किया कि डिमांड जूस की ज्यादा है, नाउ वी आर हियर टू मेक द कोल्ड ड्रिंक एज वेल एज जूस। तो उसने दोनों को कॉप अप किया। अगर वो बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी ना करते, कल के बारे में पता ना करते, तो उनका सर्वाइव रहना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने स्टार्टिंग में ही कहा कि बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करना मतलब ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। Got it? So these are the 7 features. Number 1, that is all the external forces, specific and general forces, interrelation, uncertainty, dynamic, complex, relativity. So these are the features. Now students, we study about the importance. Importance of business environment. Importance is why there is a need to study the environment. What is the specialty here? So it is not sufficient to know only the meaning of business environment. The more important aspect is to know as to why we want to study it. In other words, what is the importance? क्लियर कि हमें क्यों बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करनी है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो उसको क्या बोला जाता है, इंपॉर्टेंस। एंड देयर आर 6 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस। First is first mover advantage. The study of business environment enables us to know about the opportunities available. A company which is more conscious about the changes taking place in the business environment is the first mover. जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वाली इंडस्ट्री में ने इन्वायरमेंट को स्टडी किया कि गवर्नमेंट ने इसमें पेस्टिसाइड, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें पेस्टिसाइड्स होने के आशंका जताई है, तो वो क्या करेंगे, जूस की इंडस्ट्री लगाने में प्रेफर करेंगे। तो उन्होंने फर्स्ट मूवर का एडवांटेज लिया। इट टेक्स एडवांटेज ऑफ इट बाय बिकमिंग द फर्स्ट सप्लायर। In other words, a company which has the capacity to know the possibility of the opportunities available can be the greatest beneficiary. जो बिजनेस इन्वायरमेंट की अपॉर्चुनिटीज को अचीव कर लेते हैं वो बेनिफिट भी ज्यादा उठाते हैं। इट मीन्स you have to aware, conscious about the environment. Second, warning signal. Along with the availability of opportunities provided by the study of the business environment, we also come to know about the threats. अब जरूरी नहीं है कि आपका जूस इंडस्ट्री चले, आपकी जूस इंडस्ट्री से पहले किसी और इंडस्ट्री ने अगर जूस मार्केट में अवेलेबल करा दिया, देन आपको थ्रेट्स भी हो सकते हैं। तो इट्स नॉट ऑलवेज अपॉर्चुनिटीज, इट मे बी थ्रेट्स। तो उसे क्या बोला जाता है फिर, warning signals. So this is possible only by regularly studying the changing taking place in the business environment. Next, tapping useful resources. एक ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने पहले भी बताया कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो 5 होते हैं, 5M बोला जाता है, जैसे मनी, मटेरियल, मशीन, मैन एंड मार्केट। तो अगर आपको कुछ लगता है कि चेंजेस होने वाली हैं, तो इन रिसोर्सेज को अच्छी तरह यूज करना है। सो एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स अ नंबर ऑफ रिसोर्सेज टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस। विद द हेल्प ऑफ दीज रिसोर्सेज गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। अ बिजनेस गेट्स रिसोर्सेज फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइडेड गुड्स एंड सर्विसेज टू द सेम एनवायरनमेंट। हम सोसाइटी से ही गुड्स, ये 5 रिसोर्सेज लेते हैं और सोसाइटी को ही उसकी गुड्स और सर्विसेज बना के बेचते हैं। A study of business environment tells a business the requirement of environment and what can it take available to get its needs fulfilled. Therefore, it is possible to get useful resources from the business environment. तो आपको इन रिसोर्सेज के बारे में भी ध्यान से स्टडी करना है, क्योंकि इनसे ही बनी हुई गुड्स आपको उसी सोसाइटी को बेचनी है जहां से आपने रिसोर्सेज कलेक्ट किए। Coping with rapid change. These days,
These days, the business is being run in a rapidly changes environment. Various factors connected with business, example competition, fashion, number of customers, technology, etc. are changing quickly. Changes do not affect a business as much as the rapidity of the changes. It means that if the speed of the changes is a little less, it can be faced with comparative ease. But to face the rapidity of change is a very difficult task. This can be possible only by constant visual seen over the business environment and studying it simultaneously. तो आपको जो भी चेंजेस फैशन में, कंपटीशन में, कस्टमर्स के टेस्ट में, टेक्नोलॉजी में जो भी चेंज आती है उसको टाइमली अपने बिजनेस में अडॉप्ट करते रहना चाहिए. तो आप जितना भी सोसाइटी में चेंज जितनी तेजी से हो रहा है उसे ग्रास्प कॉप अप कर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो. सो आपको उसके लिए बिजनेस इन्वायरमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा, विजिल करना पड़ेगा टू कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस. नेक्स्ट, assisting in planning and policy formulation. The knowledge of the business environment presents the basis for planning and policy. कि आपका जो बिजनेस इन्वायरमेंट अगर आप स्टडी करते रहते हो तो नेक्स्ट ईयर की या नेक्स्ट मंथ की जो पॉलिसीज बनानी है, आपको प्लान करना है, उनके लिए भी बहुत हेल्प मिलती है. यहाँ पे एक आईटीसी होटल कंपनी की एग्जांपल दी गई है. Many news hotels abroad and in India only after a careful study of the business environment decide किया कि hotels बनाने हैं. They felt that tourism industry was the biggest industry in the world. Its future was particularly bright in India. The government also has a special interest in the development of the industry because of many reasons. तो जिसने इस स्टडी को ध्यान में रखा, ऑलरेडी डिस्कस जो जब हो रही थी गवर्नमेंट की ओर से, टूरिज्म इंडस्ट्री जब डिस्कस कर रही थी, तो जिस बिजनेस यूनिट ने इसको कंडीशन को अपने माइंड में रखा और पहले ही होटल बनाना टूरिस्ट प्लेसेस पे जाके शुरू कर दिया, उसने बेनिफिट उठा लिया, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज होगी. और जिन्होंने इस न्यूज को इग्नोर किया या बॉदर नहीं किया, उनके लिए थ्रेटन हो गई. नेक्स्ट, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस. In every organization, the study of business environment has an important role as far as its performance is concerned. Those organizations which keep a constant eye on it and analyze it correctly definitely win the race and remain alive for a long time. On the other hand, those organizations which don't care about it cannot remain steadfast in the market and are likely to close down. Therefore, it can safely be asserted that an organization can improve its present as well as future with the help of the study of business environment. If you know about the tomorrow, what happened, then you can improve your performance today. Not only today, you can improve your performance tomorrow also. सो आपको बिजनेस में सर्वाइवल एंड ग्रोथ मिलेगा, आपको शट डाउन करने के चांसेस नहीं मिलेंगे. सो दीज आर द 6 इंपॉर्टेंस. नंबर 1, फर्स्ट मूवर एडवांटेज. नंबर 2, वार्निंग सिग्नल. टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज. कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस. असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशंस. इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस. सो 2 concept and importance we are here to study. नेक्स्ट आ जाता है हमारा डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. व्हाट आर डायमेंशंस? डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट मीन all the factors, forces and institutions which are directly or indirect influences over the business transactions. क्लियर? जो बिजनेस के इन्वायरमेंट जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक बिजनेस एम्पायर को अगर इफेक्ट करता है तो उसे डायमेंशंस बोलते हैं. So general environment is the most important dimension of business environment, as businessman cannot influence over or change the component of general environment. Rather, he has to change his plans and policies according to the changes taking place in general environment. हमारी जो general environment है, जो हमने specific and general forces पहले पढ़ी थी, जो general force है
उसको एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस जो आती हैं वो एक्सेप्ट करनी पड़ती है। नाउ मेन क्वेश्चन, component of business environment. Component, it's very important question. Component of business environment. Component होते हैं कि बिजनेस को कौन कौन इफेक्ट करता है, बिजनेस के ऊपर कौन कौन इफेक्ट करता है, उसको बोलते हैं कंपोनेंट्स। सो कंपोनेंट्स एक बिजनेस को टू टाइप से इफेक्ट करता है। सबसे पहला इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल इन्वायरमेंट आपके अंदर का, इट मीन्स इंटरनल इन्वायरमेंट जो है, पहले आप फ्लो चार्ट अच्छी तरह समझ लो कि कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट टू टाइप का है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल इन्वायरमेंट फर्दर 6 टाइप का है, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसे MIS बोलते हैं, प्रोडक्शन मेथड एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो फर्दर टू टाइप का है, माइक्रो एंड मैक्रो। इसे ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट और जनरल इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। माइक्रो मैंने वेरी स्मॉल, जिसे बोलते हैं वेरी क्लोजली रिलेटेड टू वन इंडिविजुअल इंडस्ट्री, एंड मैक्रो मीन्स ऑल द इंडस्ट्रीज। जो सिर्फ एक इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है वो माइक्रो, यानी इसको क्या बोलेंगे हम, स्पेसिफिक, और मैक्रो को क्या बोलेंगे, जनरल, और इसको डायमेंशन भी बोल देते हैं। तो माइक्रो इन्वायरमेंट जो अफेक्ट करता है वो कस्टमर, सप्लायर, कंपटीटर्स, पब्लिक, मार्केट इंटरमीडिएटर्स, ये जो हैं एक इंडस्ट्री को इंडिविजुअली इफेक्ट करते हैं। मैक्रो इन्वायरमेंट वो होता है जो सबको इफेक्ट करता है, जो सब इंडस्ट्री को कम या ज्यादा इफेक्ट करता है। ये 5 है, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल, जिसे SLEPT भी बोला जाता है। सोशल, L फॉर लीगल, एंड E फॉर इकोनॉमिक, P फॉर पॉलिटिकल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल। इन सब का थोरली स्टडी करना ही हमारा जो मेन मोटिव है। सबसे पहले आ गया इंटरनल इन्वायरमेंट। Internal environment includes all those factors which influence business and which are present within the business itself. These factors are usually under the control of business. The study of internal factor is really important for the study of internal environment. Naturally है कि इंटरनल इन्वायरमेंट वो है जो एक बिजनेस के अंदर से ही प्रेजेंट होता है और उसको अपनी नीड और रेगुलेशन रूल्स के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर लेना चाहिए, करना पड़ता है। तो उसे किसी की इंटरफियर उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि वो खुद ही उनको कम ज्यादा यूज कर सकता है। तो इंटरनल इन्वायरमेंट, अगर मेरा लेक्चर का टाइम 4 to 5 है, सर का 3 to 4 है, तो मैं लेक्चर जब मैं फ्री होंगी तब बना लूंगी, जब सर फ्री होंगे सर बना लेंगे। तो हम बाउंड नहीं है कि 4 to 5 ही हमने लेक्चर आपको लाइव देना है। सो दिस इज अवर इंटरनल फैक्टर। तो हमारे फैक्टर है, हमने सिर्फ डिमांड पूरी करनी है, काम पूरा करना है, और इसको जब मर्जी हमारे पास टाइम होगा हम उसे बना लेंगे। जैसे हमारा ये फैक्टर्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन मेथड्स, MIS, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजरियल एटीट्यूड, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सेट्रा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इंटरनल इन्वायरमेंट के। तो आपको ये जो इंटरनल इन्वायरमेंट है सिर्फ इनका नेम याद करना है, आपको इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। सेकेंड पार्ट आ जाता है इसका, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब इंटरनल का ऑपोजिट एक्सटर्नल, क्लियर? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल दोज फैक्टर्स which influence business and exist outside the business. Business has no control over these factors, and the information about these factors is important for the study of external environment. So, आपको क्या करना है, वो फैक्टर्स जो आपको बाहर से अफेक्ट करते हैं, कम या ज्यादा आपके ऊपर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। The students who are not doing the work assignments, they are affected more or less. जो 1 यूनिट जिन्होंने किया है उसको कम पनिशमेंट मिलेगी, जिन्होंने 2 यूनिट नहीं की, जैसे लाइक रुद्र है, भव्य सिजा है, जतिन है, प्रियांशु है, एंड मोर स्टूडेंट्स हैं जो B सेक्शन के भी हैं, कुसुम लड़की है। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं इनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा।
सो हमारा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसका, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मीन्स मेरा इफेक्ट आपके होमवर्क पे, जिन्होंने कर लिया उनको गुड मिलेगा और जिन्होंने नहीं किया उनको बैड मिलेगा, और इफेक्ट प्रिंसिपल मैम उनको कुछ ना कुछ पनिशमेंट, एज अ पनिशमेंट कुछ ना कुछ प्रोवाइड करेंगे. सो टू escape these type of punishment you have to regular do your work. बहुत कम काम देते हैं, वंस अ वीक हम फ्राइडे को, आपको सिर्फ मैंने चेकिंग करनी होती है फ्राइडे को सारे वर्क की, जितना भी मेरे को वीक में देना होता है. सो आपको वो काम पूरा करना है विद केस स्टडी एंड 1 मार्क्स क्वेश्चन. सो बी केयरफुल. सुबह, अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट बहुत आप ऑनलाइन होते हो, आपको ये काम कर लेना चाहिए. इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, फॉर योर पर्सनैलिटी, एंड यू फील नो शेम. सो सॉरी इफ किसी को हर्ट हुआ, बट इट्स वेरी अर्जेंट मैसेज. सो बी केयरफुल रिगार्डिंग द वर्क. 70% स्टूडेंट्स आर डूइंग वेरी वेल. 70% they are doing very well without asking me. some students, अभी मैंने थर्ड यूनिट भेजा ही नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ गए कि थर्ड यूनिट के पीडीएफ भेज दो. so they are conscious about their syllabus because they have some targets after +2. so be conscious. now एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या क्या होते हैं? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो हमारा है वो 2 टाइप का आपने ऑलरेडी पढ़ा था, माइक्रो एंड मैक्रो. तो माइक्रो और मैक्रो. माइक्रो क्या होता है? माइक्रो मीन्स स्पेसिफिक, विच इंक्लूड्स दोज फैक्टर विच बिजनेस इज क्लोजली रिलेटेड. और जो इंडस्ट्री, एवरी इंडस्ट्रियल यूनिट को डिफरेंटली अफेक्ट करता है, यानी अपनी अपनी इंडस्ट्री को अपने अपने फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे. जैसे कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, पब्लिक हैं, मार्केट इंटरमीडिएटर्स हैं. कस्टमर्स यू नो वेरी वेल कौन होते हैं? 2 टाइप के होते हैं कस्टमर्स. एक जो आपकी फर्म को हाईली इन्फ्लुएंस करते हैं और एक लेस करते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, सपोज अ फर्म सप्लायर्स गुड्स ओनली टू द गवर्नमेंट. इट मीन्स दैट फर्म हैज ओनली वन कस्टमर. इफ बिकॉज ऑफ सम रीजन देयर रिलेशन गेट्स सोल्ड, अच्छे ना रहे रिलेशन, the supply of goods will stop, and in that case the closure of that firm is certain. उनको इफेक्ट पड़ेगा. जो गवर्नमेंट को सप्लाई कर रही थी फर्म, गवर्नमेंट ने लेने से मना कर दिया, तो उस फर्म को इफेक्ट पड़ेगा. उस फर्म के साथ रिलेटेड सारे जो फर्म को सप्लाई करते थे रॉ मटेरियल, उनको इफेक्ट पड़ेगा. दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट द कस्टमर्स डू इन्फ्लुएंस बिजनेस. तो कस्टमर भी, कस्टमर कौन था यहाँ पे? गवर्नमेंट. गवर्नमेंट एज अ कस्टमर भी आपको अफेक्ट कर सकती है. देयरफॉर अ फर्म शुड मेक एफर्ट टू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ कस्टमर्स. तो आपको एक काइंड का कस्टमर नहीं चाहिए, आपको मेनी काइंड के कस्टमर रखने चाहिए एज अ स्पॉट. सेकंड, ताकि आपकी फर्म चलती रहे. अगर एक्स कस्टमर ने गुड्स नहीं ली तो वाई कस्टमर गुड्स लेने के लिए रेडी हो जाए. आपके पास वाई कस्टमर तो ऑलरेडी है ना, तो आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको थ्रेटन्स नहीं आएंगी, आपको अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सकते हो. Suppliers. Like the customers, suppliers are influence business. If a business has only one supplier and he gets annoyed because of some reason, गुस्सा आ जाए उसे आपसे, कोई रंजिश हो जाए कुछ किसी भी कारण के कारण, तो वो आपको सप्लाई करना गुड्स बंद कर देगा, जिससे आपको इफेक्ट पड़ेगा. आप थ्रेटन्ड में आ जाओगे, आपका बिजनेस थ्रेटन्ड में आ जाएगा, शट क्लोज डाउन के केसेस में आ जाएगा. इसलिए आपको क्या करना है? जस्ट लाइक कस्टमर, सप्लायर्स भी मोर रखने हैं, एक नहीं रखना. कॉम्पिटिटर्स. अब कॉम्पिटिटर का बहुत इफेक्ट पड़ता है. आजकल की दुनिया में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हो गए हैं एक एक गुड्स के. दे कैन डू सो बाय ब्रिंगिंग न्यू एंड चीप प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. आप कॉम्पिटिटर्स से सर्वाइव कर सकते हो वाइल ब्रिंगिंग द न्यू टेक्नोलॉजी, वाइल ब्रिंगिंग द चीप प्रोडक्ट्स एंड चीप एंड बेस्ट प्रोडक्ट इन द मार्केट. क्लियर? एंड उसको स्कीम प्रमोशन करने के लिए स्कीम्स और अदर मेथड्स को अप्लाई करो ताकि कॉम्पिटिटर से आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे सको. पब्लिक हैज डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स लाइक द लॉजिक, लोकल पब्लिक, प्रेस और मीडिया. द एटीट्यूड और बिहेवियर ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन अफेक्ट बिजनेस यूनिट्स. क्लियर? प्रेस, मीडिया, लोकल पब्लिक, इनका बहुत रोल होता है एक बिजनेस को सर्वाइव करने में.
For example, the local population can oppose some established firm whose business is excessively noisy. Similarly, if the media give some favorable report about a particular company, the price of its share can register an increase on this count. टू एग्जाम्पल दिए उन्होंने कि अगर एक कंपनी नॉइजी है, उसकी पॉपुलेशन कंप्लेन कर देती है, तो वो फर्म जो है, इंडस्ट्री जो है, बंद होने के चांसेस उसके ज़्यादा हैं. अगर वो नॉइज के साथ साथ कुछ अपॉर्चुनिटीज, कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है पॉपुलेशन को, लोकल पॉपुलेशन को, देन दे विल बी हैप्पी. तो आपको पब्लिक को अपोज नहीं करना, उसको अपने साथ रखना है. मार्केटिंग इंटरमीडिएटर्स. Marketing intermediaries play a significant role to develop any business unit. They are those persons who reduce the distance between the producer and agents. बिचौले जैसे बोला जाता है. प्रोड्यूसर और एजेंट के बीच में कौन कौन आता है? +1 में आपने पढ़ा हुआ है. That is wholesaler, retailers. For example, a company sells its goods with the help of agents, and if because of some reason all the agents get annoyed with the company and refuse to sell its goods, there can be a crisis for the company. कोई एजेंट अगर आपका काम करने को मना कर दे बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो आपकी कंपनी खतरे में आ सकती है, आपको थ्रेटन्स हो सकती है. तो आपको इनका भी बिजनेस एनवायरनमेंट में इनकी भी स्टडी करनी है. सो माइक्रो एनवायरनमेंट हैज 5 persons: कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक, मार्केटिंग, इंटरमीडिएटर्स. आपको इनको साथ लेके चलना है ताकि आपकी कंपनी विदाउट एनी ऑब्स्टिकल स्मूथ रनिंग करती रहे, ग्रोथ करती रहे, सर्वाइव करती रहे. नाउ मैक्रो एनवायरनमेंट, जिसका क्वेश्चन एज अ केस स्टडी वेरी कंपल्सरी है कि इसका केस स्टडी में क्वेश्चन जरूर आता है. किसी सेट में कौन सा एनवायरनमेंट आ जाता है, किसी में कोई और आ जाता है. सो देयर आर it's very important. Macro environment. Macro environment means that environment which includes those factors which have a distant relation with the business. A prominent feature of these factors is that they influence all the business units almost in the same way. कि सब इंडस्ट्री को कम या ज्यादा इफेक्ट करता ही करता है. इससे आप बच नहीं सकते हो, इसके ऊपर आपका कोई बस नहीं होता. ये आपको अडॉप्ट करना ही पड़ता है, वेदर हैप्पीली और क्राइडली, खुशी खुशी या रो के या जैसे मर्जी. इसका इफेक्ट आप पे पड़ेगा ही पड़ेगा, कम ज्यादा, और आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा. गॉट इट? दैट इज मैक्रो एनवायरनमेंट. इट मीन्स ऑल द इंडस्ट्रीज, ऑल द बिजनेस यूनिट्स. माइक्रो 1 इंडस्ट्री, मैक्रो ऑल द बिजनेस यूनिट्स. सो इसमें 5 डायमेंशंस हैं: इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जो सारी बिजनेस यूनिट पे कैसे इफेक्ट डालता है. अब इसको बहुत ईजी है लर्न करना. वट एवर यू हैव लर्न इन मीनिंग, यू हैव टू टेक दैट एलिमेंट्स and that elements impact the business, you have to write that. सबसे पहले आपको क्या करना है? मीनिंग. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, वन वर्ड, इकोनॉमिक पॉलिसीज, टू वर्ड, इकोनॉमिक कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द कंट्री. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंडीशन, पॉलिसी, सिस्टम से, कंट्री के सिस्टम से चलता है, और ये तीनों बिजनेस को अफेक्ट करते हैं लार्ज एक्सटेंट पे. And they may create threats or offer opportunities of the business. Hence, the businessman must timely scan the forces of economic environment so that threats may be avoided and opportunities may be enhanced, encashed. आपको सारा लिखना है कि इनका बिजनेस एनवायरनमेंट पे बहुत फर्क पड़ता है, ये थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज लाते हैं, और एक बिजनेसमैन को इसको टाइमली स्कैन करते रहना चाहिए ताकि अपॉर्चुनिटी से बचा जा सके, अपॉर्चुनिटीज को इनकैश किया जा सके और थ्रेटन्स से बचा जा सके. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आपको पूरा मीनिंग लिखना है. अब इसमें 3 वर्ड्स आए हैं: इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक कंडीशंस. हर डायमेंशन के आपको एलिमेंट्स और इम्पैक्ट देने हैं. क्लियर? 3 देने हैं, ज्यादा नहीं देने. सिस्टम कौन से होते हैं? सच इसकी एग्जांपल दे दो. सिस्टम कौन से हो गए? सोशलिस्टिक हो गया, कैपिटलिस्टिक हो गया, इकोनॉमिक सिस्टम हो गया, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम हो गया. पॉलिसीज
एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जिसे एग्जिम पॉलिसी बोलते हैं, टैक्सेशन पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कंडीशन, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, रेट ऑफ इंटरेस्ट. You have to learn all these examples of all these condition, system and policies, because these words are there in the case studies and you have to exact find that this word is related to economic environment. This question is related to economic environment because of these system, policy and condition. Got it? अब इन सब का असर क्या पड़ता है? अब सबका असर तो नहीं ना दे सकते यहाँ पे, तो इसमें हमने क्या किया है, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट का दे दिया कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होता है बैंकों का तो गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, तो बिजनेसमैन को अपॉर्चुनिटी मिलती है. इसी तरह अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होता है तो गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, तो वो थ्रेटन्स में आ जाता है. एंड हाई इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज करता है कॉस्ट ऑफ बिजनेस को. So this is the economic environment. Second is social environment. Social environment क्या होता है? Social environment consists of social forces like traditions, values, social trends, fashion, wishes, hopes, level of education, standard of living, etc. इन सब का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है एक बिजनेसमैन के ऊपर. सो ये भी थ्रेटन्स और अपॉर्चुनिटी लाते हैं और इसको बिजनेसमैन को स्कैन करते रहना चाहिए. मेजर एलिमेंट हमने 3 वर्ड पढ़े, ट्रेडिशंस, वैल्यूज एंड सोशल ट्रेंड्स. ट्रेडिशंस क्या होते हैं? रीति रिवाज जो लास्ट डिकेड्स से चले आ रहे हैं, दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरुपर्व, ये थ्रेटन्स भी लाते हैं और अपॉर्चुनिटीज भी लाते हैं. तो थ्रेटन्स उनको लिए लाते हैं जो स्टडी थोरली नहीं करते इनकी बिजनेस एनवायरनमेंट की, और अपॉर्चुनिटी वो होते हैं जो पूरा साल उनकी वेट करते हैं और उनके लिए तैयारियों में लगे रहते हैं. वैल्यूज जैसे फ्रीडम है, सोशल जस्टिस है, इक्वालिटीज है, ये आपको वैल्यूज देनी है. सोशल ट्रेंड्स हैं कि आजकल किस चीज का ट्रेंड चल रहा है, जैसे आजकल फिटनेस का ट्रेंड चल रहा है एंड इसको फिटनेस के ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको सर्वाइव करना है बिजनेस में, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करनी है. इन एलिमेंट्स का इम्पैक्ट क्या पड़ा? जो ट्रेडिशंस हैं, लार्ज नंबर ऑफ ट्रेडिशंस जो हैं वो बहुत सारी टेक द प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर वेरियस बिजनेसेस. क्लियर? बहुत सारों की अर्निंग इन ट्रेडिशंस पे ही डिपेंड होती है. पूरा साल वो इसी फेस्टिवल्स की वेट करते हैं और अपना सरवाइव करते हैं. फ्रीडम का ले लेते हैं हम. इंडिविजुअल फ्रीडम इज अ वैल्यू विच क्रिएट्स फ्रीडम ऑफ चॉइस इन द मार्केट. फिर सोशल जस्टिस, ये बिजनेस को रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि सोशल जस्टिस दे व्हाइल मेकिंग प्रोड्यूसिंग द गुड्स. इक्वलिटीज, everybody have the equal rights, मेल और फीमेल उनको इक्वल रेम्यूनरेशन दें फॉर सेम वर्क. हेल्थ एंड फिटनेस ने जिम के इक्विपमेंट्स का, मिनरल वाटर का और पिल्स का, या कह लो कि बहुत सारे ऐसे चीज़ों का डिमांड इंक्रीज कर दिया जिससे बिजनेसमैन को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी. थर्ड है हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट. Technology environment consists of innovation of new techniques to produce goods and services and operating the business. Technological changes bring something new and better for customers. They may create threat for some business and offer opportunities to others. The businessman must have close eyes on technological changes taking place in his field. In case a businessman understands these changes well in time and he can achieve his objectives. Otherwise, the very existence of the business is threatened. तो टेक्नोलॉजी, न्यू आइडियाज, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते रहना ही बिजनेस को में सर्वाइवल दे सकता है, अदरवाइज उसे थ्रेटन्स मिलेंगी. एलिमेंट्स हैं इसके, डिस्कवरिंग ऑफ न्यू आइडियाज, discovering new ways or producing goods and services and discovering new methods. नए नए मेथड, नए नए वेज गुड्स को प्रोड्यूस करने के ढूंढते रहना चाहिए. इसका असर क्या पड़ता है? इसमें फर्स्ट एग्जांपल इन्होंने दिया कि जैसे ही टीवी की खोज हुई, टीवी की इन्वेंट हुई, तो सिनेमा का, रेडियो का ट्रेंड खत्म हो गया. मतलब उस पर असर पड़ा, कम हो गया, खत्म नहीं हुआ, कम हो गया, उनका बिजनेस कम हो गया. फिर फोटोस्टेट मशीन आने से कार्बन पेपर की इंडस्ट्री पे इफेक्ट पड़ा, उसके बिजनेस को थ्रेटन मिली और फोटोस्टेट मशीन वाली को अपॉर्चुनिटीज मिली क्योंकि उसने न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया. अकॉर्डिंग टू बायर, कस्टमर, उसने
उसको स्टडी किया और फोटोस्टेट मशीन लगाई। एंड सिंथेटिक थ्रेड आने से कॉटन थ्रेड की इंडस्ट्री को इफेक्ट पड़ा। डिजिटल वॉचेस आने से ट्रेडिशनल वॉचेस को बिजनेस को इफेक्ट पड़ा। तो ये इम्पैक्ट पड़ा। नाउ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ पॉलिटिकल कंडीशंस सच एज जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री। किसके लिए? एंड एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स बिजनेस। इट हैज ग्रेट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस कम्युनिटी and it may have either positive or negative. So बिजनेस इन्वायरमेंट में पॉलिटिकल कंडीशंस का बहुत रोल पड़ता है और ये कंट्री में पीस और स्टेबिलिटी लाने के लिए बनाई जाती है। तो एलिमेंट क्या हो गया? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पीस, एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल है या मल्टी पार्टी है। एंड मतलब एक जैसे अकेली कांग्रेस की है या बीजेपी की है या दोनों की मिलके बनी हुई है, सिंगल एंड मल्टी पार्टी। आइडियोलॉजीज ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, उनका क्या मोटिव है। अब इसका असर क्या पड़ता है? 1977 में जनता गवर्नमेंट आई, उसने क्या किया? कोका कोला को इग्नोर कर दिया इंडिया में बेचने के लिए बिकॉज ऑफ द पेस्टिसाइड्स। एमएनसी कंपनीज कोका कोला को। इसके बाद जब न्यू गवर्नमेंट आई तो उसने कोका कोला को एंट्री दे दी इंडियन मार्केट में वंस अगेन सामान बेचने के लिए। तो पॉलिटिकल पार्टी, जनता गवर्नमेंट ने बैन किया तो दूसरी गवर्नमेंट आई, उसने इनवाइट कर लिया उसको। ऐसे ही एक और केस है हैदराबाद का। हैदराबाद में सारे सेक्टर आईटी हो गए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटराइज हो गए। तो उसके सीएम ने अपनी कुछ आइडेंटिटी शो करने के लिए उसका नाम साइबराबाद रख दिया। सो बहुत फर्क पड़ता है पॉलिटिकल पार्टीज का कंट्री में पीस और स्टेबिलिटी लाने के लिए, ये भी इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। लीगल इन्वायरमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्ट्स पास्ड बाय द गवर्नमेंट, judgment of courts and decision taken by various commissions and agencies appointed at center, state or local level. This arrangement needs to control and regulate the various business activities such as sale, purchase, industrial disputes. The business community cannot ignore the legal framework as it has to perform transactions within it. It may have either positive or negative impact on business. So businessman must scan it regularly. कोर्ट की जजमेंट है, कोई डिसीजंस लेने हैं, इसमें रिच और पुअर का कुछ नहीं होता कि अगर रिच ने क्राइम किया है तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, पुअर ने किया तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। नो, एवरीबडी हैव ट्रीटेड सेम। दिस इज द मीनिंग ऑफ लीगल इन्वायरमेंट। सबके लिए सेम रूल्स, सबके लिए सेम पनिशमेंट। सो एलिमेंट्स क्या हैं? द एक्ट्स, द डिसीजंस, द जजमेंट ऑफ कोर्ट। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? बाय रिमूविंग कंट्रोल ऑन द कैपिटल मार्केट, a huge amount of capital was collected by issuing various new issues in the primary market. कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट में न्यू इशू जो शेयर होते हैं प्राइमरी मार्केट में, उनके ऊपर कंट्रोल रखा हुआ कि उनकी जो वैल्यूज हैं, उनके जो प्राइसेस हैं, वो नॉट मोर देन दिस, नॉट लेस देन दिस, ये प्राइस फिक्स कर दी जाती है गवर्नमेंट की ओर से। तो वो जो उसके ऊपर कंट्रोल हटाने के लिए प्राइवेट कंपनीज का ये लीगल इन्वायरमेंट बनाया गया। फिर विद इंट्रोडक्शन ऑफ रिलैक्सेशन इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज, मेनी मल्टीनेशनल कंपनीज एंटर्ड द इंडियन मार्केट। एफडीआई के कम होने से क्या हुआ? बहुत सारी इंडिया एमएनसीज को इंडियन मार्केट में अपॉर्चुनिटीज मिली। So this is the today's lecture and hope you all very well understand, and if there is any doubt then you can ask me personally on my WhatsApp number. So have a nice day. Thank you.